Good day to all and very warm welcome to my channel. My name is Harita Sadrani. I am explaining you history subject of standard 4th of State Board. Till now I have completed 6 chapters of history. If you have missed any one of this, please subscribe to my channel. My channel name is Harita Sadrani and get all the study videos till date. Today I am going to explain you all a new lesson. Lesson number 7, Swaraj, the first conquest. So listen to it very carefully, and if you liked my explanation, please comment on it, share it and click on the bell icon. So let's start with the explanation now. Lesson number 7, Swaraj, first conquest. Conquest means victory, जीत. स्वराज में मिली हुई पहली जीत. The victory that Shivaji got, the first victory that Shivaji got for Swaraj. Okay? In this lesson, we will come to know about what was the first victory or which was the first fort that Shivaji captured or took under his control for establishing Swaraj, and why was it was so important to capture a fort. Okay, I will read it out and do the explanation simultaneously. It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in the temple of Rayeshwar, but it was a very difficult task. Yes, in the last lesson, we have read that Shivaji with his friends, with Mavras, had took a oath of establishing Swaraj in Maharashtra at the temple of Rayeshwar. The temple was of Lord Shiva. Okay? उन्होंने शिव जी के सामने ये शपथ ली थी कि वो महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना करेंगे. क्या ये जो काम या जो शपथ उन्होंने ली उसे पूरा करना इजी था? नहीं, बहुत एकदम आसान नहीं था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था. ओके, लेट्स सी व्हाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट. In those days, Maharashtra was governed by 4 different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, Portuguese of Goa, and Sindhis of Janjira. Okay, Sindhis of Janjira. So, why it was so difficult? It was difficult because Maharashtra was surrounded from all the sides with the enemies. Who were these enemies or who were this strong power? They were the Mughal Emperor from Delhi, Adil Shah within Maharashtra, okay? And but the Adil Shah got the support of Mughal Emperor. Okay, आदिल शाह को किसका सपोर्ट था? मुगल एम्परर का. पोर्चुगीज थे जो गोवा में थे. द पोर्चुगीज वर फॉरेनर्स, राइट? और जंजीरा जो एक पार्ट है महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में है, वहाँ पर कौन थे? सिंधीज. ओके, जंजीरा में कौन थे? सिंधीज थे. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमीज थे या बहुत स्ट्रॉन्ग विरोधी हम कह सकते हैं, राइट? दे वर पावरफुल अपोनेंट्स, फर्म इन देयर अथॉरिटीज. नो वन वुड डेयर अल्टर अ वर्ड अगेंस्ट देम. ये जो चारों थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे. अपोनेंट्स मीन्स हम कह सकते हैं विरोधी या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं उसे. सिंपल टू अंडरस्टैंड, एनिमी. ओके, सो ऑल दिस 4 वर स्ट्रॉन्ग एनिमी and they were very firm in their decision or authority. वो अपने उनके पास बहुत अथॉरिटी थी, बहुत पावरफुल थे और कोई भी उनकी बात टालना या काटना या अमान्य नहीं कर सकता था. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात न माने या उनकी बात को
ओवरलुक करे, राइट? सभी उनसे डरते थे. Alter means to cut, not to listen. Okay. Under this difficult condition, Shivaji had taken an oath of स्वराज. और इन्हीं सब डिफ़िकल्ट कंडीशन में शिवाजी ने स्वराज स्थापना की शपथ ली थी. डिफ़िकल्ट कंडीशन क्यों पता है आपको? क्योंकि मुग़ल एम्परर जो नॉर्थ में थे वो बहुत पावरफुल थे. उनके पास लाखों के सेना दल था, लाखों का सेना दल था. हथियार भी उतने ही उनके पास थे, राइट? और मुगल्स को बाकी राज्यों का भी बहुत सपोर्ट था. जो तब हिंदुस्तान में जितने भी अलग अलग राजा थे उनका भी उनको काफ़ी सपोर्ट था. आदिल शाह वैसे ही पावरफुल था उस तभी, और उसे और पावरफुल कैसे बना? जब उसको मुगल्स की हेल्प मिली. पोर्चुगीज़ जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे वो भी पावरफुल थे. उनके पास भी आधुनिक, उस समय के आधुनिक हथियार थे, लड़ाई लड़ने की आधुनिक तकनीक थी. और जो ये सिंधीज़ थे वो भी उतने ही पावरफुल थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में उनका राज्य था. ओके, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र का किनारा जो होता है वहाँ पर उनका राज था. तो ये भी उस ज़माने में बहुत पावरफुल थे और ऐसे शत्रुओं के साथ शिवाजी को लड़ना था. देखिए आगे लिखा है उन्होंने. There was no comparison between the vast force of enemy and the handful Shivaji's मावड़ास. ओके, इन सब के पास, ये चारों दुश्मनों के पास बहुत बड़ी सेना थी और शिवाजी के पास क्या था? कुछ ही मावड़ास, कुछ 100 आसपास या 1000 की संख्या गिनती में उनके पास मावड़ास होंगे. और ये जो मावड़ास थे वो कुछ इतने वेल ट्रेंड नहीं थे जैसे उनके दुश्मन के सिपाही थे. इनके पास हथियार भी क्या होंगे? तलवार, भाला, ओके, ऐसे हथियार थे. तो हथियार भी उनके पास काफ़ी पुराने या उस ज़माने के अनुसार नहीं थे, लेटेस्ट नहीं थे जैसे बाकी लोगों के पास थे. तो कुछ कंपैरिजन नहीं था शिवाजी के छोटी सी सेना में और इनकी बाहुबली सेना में, राइट? बट शिवाजी's माइंड was made up and his firm resolve was his greatest source of strength. बट शिवाजी ने अपना मन बना लिया था कि वो ये काम करेंगे. कौन सा काम? स्वराज्य की स्थापना का काम करके ही रहेंगे. और यही उनका दृढ़ निश्चय, फर्म हम बोल सकते हैं, ये जो है फर्म रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय ही उनकी ताकत था. तोरणा फोर्ट. शिवाजी कंट्रोल्ड the Jagir of Pune, Sope, Sakan and Indapur. All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all task of Swaraj without the control of the fort was meaningless. Okay, see, we have read in last chapter that the Jahangir of Pune Sope was given to Shahaji Raje by Adil Shah after signing the treaty of peace with Mughal emperor, right? So this Jahangir was handed over by Shahaji Raje, father of Shivaji, to Shivaji. Okay, तो शिवाजी वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. वो वहाँ का, उस जागीर का, इन इलाकों के कामकाज का ध्यान रखते थे शिवाजी अपने पिता के बिहाफ पे. और इनको गाइड कौन करता था? यस, यू आर राइट, उनकी माँ. लेकिन एक समस्या थी. जागीर तो मिल गई थी, लेकिन जागीर में जितने भी किले थे वो सब किले किसके कंट्रोल में थे या किसके हक में थे या उन किलों की ओनरशिप किसके पास थी? तो वो थी आदिल शाह के पास. ओके, किलों पर शिवाजी का या उनके पिता का, शाहजी राजे का या किसी भी मराठा सरदार का हक नहीं था, राइट? वो कौन कंट्रोल करता था? बीजापुर से आदिल शाह.
जिसके हाथ में किले थे वही उसके आसपास के इलाकों को भी कंट्रोल में रखता था। सपोज अब एक किला एक आदिल शाह के अंडर में है, तो उस किले को लग के जो एरिया है, जो गांव है, उस किले को लग के उसके पास में जितने भी गांव आते हैं, वो सब गांव पर जो कंट्रोल है या जो हक है वो किसका रहेगा? उस किले को जो कंट्रोल करता है उसका। इसीलिए स्वराज्य की बात करना और टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग स्वराज or dreaming about establishing a Swaraj was meaningless till we have or till Shivaji controls or captures such fort. Because if a fort is captured, then the area surrounding to the fort, the villages which are located surrounding the fort will automatically come in the control of the person who is in charge of the fort. So it was very essential to capture a fort for Shivaji. The hill fort gave strategic support to the ruler and Shivaji decided to capture one at a suitable time. So शिवाजी ने सोचा कि जो हिल फोर्ट, पर्वत पे जो किले होते हैं, राइट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनमें ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एक रूलर को या एक शासक को या एक राजा को। क्यों? क्योंकि जो हिल फोर्ट होते हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, और पहाड़ मतलब कैसे? ऊंचाई पर, राइट। तो उनको चढ़ के जाना शत्रु के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ऊंचाई से हमेशा हम अपने शत्रु पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र रख सकते हैं। सो शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन सच फोर्ट एट अ सूटेबल टाइम। शिवाजी ने डिसाइड किया कि हमें ऐसा ही एक फोर्ट चाहिए जो मजबूत हो, पर्वत किला हो, और जिससे शत्रु से हम आसानी से बच सके या उस पर नज़र रख सके। इफ़ यू सी द पिक्चर, दिस इज़ अ फोर्ट, दिस इज वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फोर्ट गिवन इन योर पिक्चर, राइट। सो यू कैन सी हिल, the area, if somebody stands here, he can easily have a look or a bird eye view of the area surrounding. He can easily see the enemy. Okay, he can easily keep watch on the enemy from this height. For this purpose he decided, he means Shivaji, for this purpose he had selected the fort of Torna. Okay, it stands to the southwest of Pune in the Kanad Valley. It was renowned fort, well suited for defense. Okay, so शिवाजी महाराज ने तय कर लिया कि अब मैं ऐसा ही एक किला अपने कब्जे में लूँगा। और वो कौन सा किला था? वो किला था तोरना। ओके, तोरना कहाँ पर सिचुएटेड था? पुणे से थोड़ी दूर, कनद वैली, कनद के पहाड़ों में ये किला था। और ये किला बहुत ही रिनोवेंट मतलब प्रसिद्ध था, फेमस था फॉर वेल सूटेड फॉर डिफेंस, और शत्रु से रक्षा के लिए या शत्रु से लड़ने के लिए ये किला बहुत ही मजबूत था। देयर वर 2 strong marches on the way to fort. A marchi is a fortification of natural plateau formed on the slope of hill. Okay, ये जो फोर्ट है तोरना, उसकी क्या खासियत थी? इस फोर्ट पे 2 माचीज़ थी। अब माचीज़ क्या होती है पता है? सबको पता है पहाड़ कैसे होता है, ऐसे स्लोप भरा होता है, राइट। थोड़ा सा बीच में ऐसा एक, हम बोल सकते प्लेन एरिया होगा, राइट, और फिर से चढ़ान होगी। तो इस जो किले की ये 2 ऐसी प्लेटोज़ मिलते थे, प्लेटफॉर्म मिलते थे, और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत थे, राइट। एक बोलते ना, हम चढ़ रहे हैं और बीच में यहाँ पर हम इस एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने आर्मी कैंप बनाने के लिए या गोला बारूद रखने के लिए, क्योंकि इसके आगे हम जाएंगे तो किला होगा, राइट, यहाँ पर कहीं पे किला होगा। तो बीच में ही हम शत्रु से लड़ने के लिए हमें एक मैदान जैसा मिल जाएगा। तो ऐसे 2 मैदान थे, कहाँ पर?
या प्लेटफॉर्म थे तोरणा किले पर। उन दोनों का नाम अब हमें पता चलेगा। वन ऑफ दीज माचीज वॉज झुंजार माची एंड द अदर वन बूधला माची। एक का नाम था झुंजार माची और दूसरे का नाम था बूधला माची। झुंजार माची, like its name, would offer powerful defense against the enemy। झुंजार माची बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, या उसका जो लोकेशन था वो इतना अच्छा था कि वो शत्रु से लड़ने में या शत्रु से रक्षा के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था, राइट। तो अपने नाम जैसा ही वो झुंजार था। झुंजार मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग, ऐसा था वो। ओके, सो देयर वर टू माचीज ऑन दिस फोर्ट। वन वॉज झुंजार माची एंड द अदर वन वॉज बूदला माची, राइट। दिस you keep in the mind because it is asked in your objective type questions, okay। The only access to the fort was across the झुंजार माची। अगर आपको फोर्ट पे चढ़ के जाना है तो आपको झुंजार माची को पार करना ही पड़ेगा, ओके। It is a difficult passage with a high hills on one side and deep valleys on the other। A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley। तो ये जो पर्वत का जो रास्ता था या फोर्ट पे जाने का रास्ता था, बहुत ही डेंजरस था। क्यों डेंजरस था? क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, ओके, डीप वैलीज। अगर थोड़ी सी भी शत्रु से या किसी से भी अगर गलती हुई, पैर फिसल गया, तो वो सीधा जा गिरेगा खाई में नीचे और अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो बहुत ही डेंजरस या डिफ़िकल्ट रास्ता था तोरणा पे किले तक पहुंचने वाला, राइट। तोरणा वॉज कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, और इसीलिए उस समय तोरणा को महाराष्ट्र का एक मजबूत किला माना जाता था, स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग किला माना जाता था। इन द फोर्ट देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस तोरणा जाई। किले के अंदर एक मंदिर है देवी का, और देवी का नाम क्या है? तोरणा जाई। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओके। द नेम ऑफ द टेम्पल इन तोरणा गॉडेस तोरणा जाई। दैट इज़ वाई द फोर्ट इज़ कॉल्ड तोरणा, यस। तो इस किले का नाम तोरणा कैसे पड़ा? ये देवी के मंदिर के नाम के ऊपर से इस किले का नाम तोरणा पड़ा। तो ये भी आपको शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है, राइट। सो कीप इन द माइंड द फोर्ट वॉज नेम तोरणा बिकॉज ऑफ द टेम्पल of the goddess Torna Zai। Strangely enough, this powerful fort was neglected by Adil Shah। There were neither enough proof of for its defense nor enough immunization, okay। तो ये बहुत स्ट्रेंज, मतलब एक हम बोलते हैं आश्चर्य की बात थी, या इट वॉज वेरी अनयूजुअल थिंग, राइट, कि इस किले को आदिल शाह ने ध्यान नहीं दिया था, या आदिल शाह इतना उसका ख्याल नहीं रखता था, क्योंकि आदिल शाह को लगता होगा कि ये जो फोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई इस पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई उस पर चढ़ के आएगा नहीं, तो क्यों मैं उस पर इतना अपना एनर्जी वेस्ट करूं। इसीलिए उसने वहाँ पर बहुत थोड़े ही सिपाही रखे थे। नाइदर इनफ ट्रूफ मतलब सिपाही या सैन्य दल, फॉर इट्स डिफेंस उसकी सुरक्षा के लिए, नॉर इनफ एम्यूनेशंस मतलब गोला बारूद या हथियार भी उस किले पे नहीं थे। मतलब ये किला जो था नेग्लेक्टेड था, दुर्लक्ष्य था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड। शिवाजी को ये सब बातें पता थी कि किले पे क्या चल रहा है, क्या है, कितने शत्रु के सैन्य दल वहाँ पर है, गोला बारूद कितनी मात्रा पर है, शिवाजी को सब पता था और उनको यही चाहिए था। वो इसी बात का, या उनको ऐसा ही फोर्ट चाहिए था जिस पे शत्रु का ध्यान
न हो। आप सबको पता है ये क्यों? क्योंकि शिवाजी के पास थोड़े ही सैनिक थे और इन थोड़े सैनिकों के साथ वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे। इसीलिए वो चतुराई से ऐसे किले की उन्होंने पहली खोज की जहाँ पर शत्रु की नज़र नहीं हो या शत्रु उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो। He decided to capture the fort and thus lay the foundation of हिंदवी स्वराज। तो शिवाजी को सब पता था कि क्या है क्या नहीं है उस किले पे, और शिवाजी ने डिसाइड किया कि मैं इस किले को अपने कब्जे में कर लूँगा और हिंदवी स्वराज्य की नींव, फाउंडेशन मतलब नींव, पहला कदम स्वराज्य की तरफ, हिंदवी स्वराज्य की तरफ बढ़ाऊँगा। The drums of स्वराज began to sound। स्वराज की जीत की खुशी या स्वराज्य की जीत की जो बोलते हैं ना आनंद, वो सब जगह पर अब फैलने लगा। इन दिस पैराग्राफ वी विल come to know how the fort Torna was captured by Shivaji, right? With a few selected bands of Mavras, Shivaji descended into the Kanat valley. Stiff-footed like deers and lion-hearted in courage, they raced to the top and captured the strategic positions in the fort. शिवाजी सिर्फ कुछ ही सैन्य दल के साथ, थोड़े से मावड़ास के साथ कनत की घाटियों में उतरे, कनत की पहाड़ियों की घाटियों में उतरे और अपने स्टिफ फुटेड मतलब बहुत ही तेज़ थे सब। कौन? शिवाजी और उनके मावड़ास। किसकी तरह? हिरन की तरह। और उनकी जो शक्ति थी या उनमें एक जो करेज था वो किसकी तरह था? शेर की तरह। हम कहते हैं ना शेर जैसा कलेजा होना चाहिए, मतलब निडर। वो सभी बहुत निडर थे और उतने ही वो बहुत तेज़ थे। इसीलिए देखते ही देखते उन्होंने किले के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मतलब एडवांटेज वाले या बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कब्जे में कर लिया। तानाजी मालसुरे होस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन गेट। तानाजी मालसुरे शिवाजी के एक बचपन के दोस्त है और बहुत बहादुर मराठा सरदार है, राइट। इन्होंने मराठास का जो झंडा था वो तोरना के मेन गेट या मेन दरवाजे पर लगा दिया। यशाजी कानक, the trustworthy and loyal companion of Shivaji, posted his guard at the important points. The fort was captured almost without any resistance. The sky was filled with the shout of Shivaji Maharaj ki jai. तानाजी मालसुरे ने तो क्या कर दिया? मेन गेट पे मराठों का झंडा लगा दिया, जीत की निशानी लगा दी। यशाजी कनक जो थे उन्होंने कुछ जो शिवाजी के लॉयल कंपेनियन मतलब वो भी एक लॉयल सरदार थे, उन्होंने अपने कुछ मावड़ास को जो फोर्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर तैनात कर दिया ताकि शत्रु फिर से उन पर आक्रमण नहीं करे। और फोर्ट आसानी से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। विदाउट एनी रेसिस्टेंस मतलब शत्रु का कुछ भी ज़्यादा विरोध उनको सहना नहीं पड़ा या बहुत युद्ध उनको करना नहीं पड़ा। आसानी से, विदाउट एनी रेसिस्टेंस, आसानी से उनको ये फोर्ट अब मिल गया या फोर्ट को उन्होंने जीत लिया। आसमान में एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, क्या थी वो? शिवाजी महाराज की जय। द स्काई वॉज फिल्ड विद द शाउट ऑफ शिवाजी महाराज की जय। द फर्स्ट बैटल ड्रम्स एंड पाइप्स of Hindavi Swaraj had sounded, here the echo reverberated throughout the valley. Reverberated मतलब गूंजना, बार बार गूंजना, ओके। इको एक बार आता लेकिन वो इको बार बार सुन रहा था, गूंज उठ रहा था, उससे हम कैसे कह सकते हैं? रिवर्बरेटेड थ्रू आउट द वैली। शिवाजी नेम्ड द फोर्ट प्रचंडगढ़। जीत की खुशी में ढोल बजाए गए। पाइप्स मतलब देखो ऐसे एक तरीके का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा सी शेप में होता है, ओके, वो बजाया गया। ये आपने बहुत सारे पुराने
पिक्चर्स में देखा होगा, जहाँ पर राजा महाराजाओं की एंट्री पे ये बजाया जाता है, राइट। एक अलग एकदम तेज इसकी आवाज़ होती है, अ वेरी लाउड साउंड, ओके। सो एवरीवेयर वॉज द हैप्पीनेस, जॉय, एंड द शिवाजी ने इस तोरणा किले का नाम फिर क्या रखा? प्रचंडगढ़। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन asked. Okay, so the Torna was renamed as Prachandagarh. Let me tell you the meaning of this word. Descendant means to climb down. Niche utarna, okay, to come down. Next paragraph. Blessings of Goddess Bhavani. Fort Torna then came under Shivaji's administration. Fort Torna अब शिवाजी के अंडर था। फोर्ट की देखभाल या उस पर जो भी अब काम होगा, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब शिवाजी पे थी। ही मेड अ केयरफुल, वेरी केयरफुल सर्वे ऑफ इट। ही स्टैंड्स फॉर शिवाजी, इट स्टैंड्स फॉर तोरणा फोर्ट। तो शिवाजी ने तोरणा फोर्ट की बहुत अच्छी तरीके से, हम बोलते हैं ना, जानकारी हासिल की, सर्वे किया, देखा कहाँ पर क्या है, कहाँ पर पहाड़ पे किस या किले के किस एरिया में कितना क्या रखा हुआ है, वहाँ पे कौन से मकान बनाए हैं, कौन सा हिस्सा किसके लिए यूज़ किया गया है, वो सब उन्होंने डिटेल स्टडी की। एंड अपॉइंटेड ऑफिसर सच एज अ मराठा किलेदार, अ ब्राह्मण सबनिस एंड अ प्रभु कारखानिस। किले का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो मराठा एक सरदार जो मराठा थे उनको किलेदार बनाया। किलेदार मतलब जो हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी, राइट, जिसके किले की सुरक्षा जिसके हाथ में है, कहाँ पर सैनिक तैनात रहेंगे, कौन किले के अंदर आ सकता है, कौन किले के बाहर जा सकता है, कब जा सकता है, ओके। तो इस एक प्रकार के वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे किले के, राइट। ब्राह्मण सबनिस, जो ब्राह्मण थे उनको सबनिस बना दिया गया। सबनिस मतलब क्लरिकल वर्क के लिए, जो अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, राइट, हुक्मनामा निकालते हैं, ऐसे सब। रिटर्न एंड फॉर रिकॉर्डिंग, ऑफिशियल वर्क या क्लरिकल वर्क के लिए जो ब्राह्मण्स थे उनको रखा और उनको कहा गया या उनको एक डेजिग्नेशन दिया गया सबनिस। ये भी एक डेजिग्नेशन ही है, ओके, उपाधि जिसे हम बोल सकते हैं। जो प्रभु थे, राइट, जिनका सरनेम प्रभु था, उनको कारखानिस। जो कारखानिस यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मेंटेनेंस देखते हैं, जो किले की देखभाल करते हैं, रास्ते बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रीज या गोला बारूद बनाने पे जिनका ध्यान होता है, कैसे गोला बारूद बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो काम उन्होंने प्रभुस को दिया और उनका डेजिग्नेशन रखा कारखानिस। द ग्रैनिसन इंक्लूड मावड़ास, कोळीज, रामोशीज, महार and such brave men from many other caste and communities. Garrison means एक ऐसी ये होता है, सैन्य दल होता है जो किले पे होता है, जो किले की सुरक्षा के लिए खास सैन्य दल होता है। अब इस खास सैन्य दल में कौन कौन थे? मावड़ास थे, कोळीज थे, जो एक जात होती है जो फिश पकड़ते हैं वो। रामोशीज मतलब लुटेरे, लोकल डकैत, ओके। महार थे, एक जाति है, उस जाति के लोग थे। ब्रेव मैन फ्रॉम मैनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज़, बहुत सारे शूरवीर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से, अलग अलग बैकग्राउंड से शिवाजी के सैन्य दल में शामिल थे, प्रमुख सैन्य दल में शामिल थे, जो किले की सुरक्षा में तैनात थे। इन स्वराज all castes and communities were to be treated alike and no distinctions made on the basis of caste. स्वराज्य की स्थापना इसीलिए हुई थी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो कास्ट बेस हो या धर्म के बेस्ड हो, कोई भी डिस्टिंक्शन या भेदभाव नहीं होगा। As repairs to the fort started, a surprise awaited the people. हमने पहले देखा था ये तोड़ना तो वैसे स्ट्रॉन्ग था, बट इस पर ज़्यादा ध्यान
आदिल शाह ने नहीं दिया था, जिसके कारण ये फोर्ट थोड़ा बोलते ना रिपेयर के लिए निकला था, थोड़ा डैमेज हो गया था। तो अब इस फोर्ट की रिपेयरिंग का हाथ शिवाजी ने हाथ में लिया। ओके, तो जब ये रिपेयरिंग का काम चल रहा था तब वहाँ पर एक आश्चर्य की बात घटी, एकदम समथिंग सरप्राइजिंगली हैपेंड। ओके, अननोइंग थिंग हैपेंड देयर। They discovered 4 metal pots filled to the brim of mohurs. क्या मिला उनको? जो लोग रिपेयर का काम कर रहे थे, what they found? They found 4 metal pots. बहुत बड़े बड़े metals के उनको घड़े मिले, pots. Okay, and they were empty? No, they were not empty. They all were filled with gold coins. मोहर्स मीन्स गोल्ड कॉइन्स। ओके, और एकदम ऊपर तक भरे हुए थे। ब्रिम मतलब एकदम टॉप कट, हम बोलते हैं ना फुल, एकदम फुल थे वो चारों के चारों मेटल पॉट्स। किससे भरे हुए थे? सोने के कॉइन्स। मोहर्स मतलब सोने के कॉइन्स, राइट। तो ये एक सरप्राइज था, रिपेयरिंग करते समय उनको इतना बड़ा खजाना मिला। दे फाउंड द ट्रेजर ऑन द फोर्ट एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग। द वर्कर्स वर ओवरजॉयड। जो कामगार थे वो बहुत ही खुश हुए। दे सेड दैट दिस वॉज अ गिफ्ट टू शिवाजी फ्रॉम गॉडेस भवानी हु हैड ब्लेस्ड हिज एफर्ट्स। सब ने यही माना कि ये शिवाजी को आशीर्वाद रूप में मिला है माँ भवानी से या गॉडेस भवानी से। दे ऑल फेल्ट दैट शिवाजी इज़ ब्लेस्ड बाय गॉडेस भवानी फॉर हिज एफर्ट्स। जो भी उन्होंने काम किया स्वराज्य की स्थापना के लिए, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत की प्रसन्न होकर भवानी माँ ने उनको आशीर्वाद स्वरूप ये सोने से भरे हुए एक नहीं, दो नहीं, 4 बड़े बड़े पॉट्स दिए। ओके, सोने की मोहर से भरे हुए। ऑल द मनी डिस्कवर्ड वॉज ब्रॉट टू शिवाजी। जो भी पैसा मिला सब लेके, काम जो मजदूर थे सब उठा के कहाँ लेके गए? शिवाजी। दे ब्रॉट ऑल द मनी टू शिवाजी। नो वन थॉट ऑफ टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। किसी ने भी ये सोचा नहीं कि इसमें से कुछ मैं ले लूँ, किसको क्या समझने वाला। सब, किसी ने भी उस धन को छुआ नहीं। नो वन डेयर और नो वन लाइक टू टच द treasure that they found on the fort. After all, it was the wealth of स्वराज। क्यों? क्योंकि वो स्वराज की पूंजी थी, या स्वराज को मिला हुआ माँ भवानी का आशीर्वाद था, और वो स्वराज की ही, हम बोल सकते स्वराज का ही धन था। तो इसके लिए किसी ने भी उसको हाथ लगाया नहीं। शिवाजी फेल्ट ग्रेटली elated at this unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigorance। शिवाजी बहुत ही खुश हो गए कि ये देख कर कि हाँ, अब मुझे पैसे आ गए हैं, अब मैं इन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बहुत सारे जो मेरे काम हैं वो इन पैसों से मैं पूरा कर सकता हूँ, जो मेरे स्वराज्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। He felt that he was working under the benevolent eyes of goddess भवानी। उनको ऐसा लगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो भवानी माँ के या गॉडेस भवानी के आँखों के, मतलब बोलते ना, उन पे नज़र है, देवी की उन पे नज़र है, और देवी का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो बहुत खुश हुए। In this paragraph, we will read how Shivaji made use of the treasure or the money that he found on the fort Torna at the time of its repair. Okay? Shivaji utilized a part of the treasure means khazana, found in the fort to purchase arms and ammunitions. जो खजाना उनको फोर्ट तोड़ना पे मिला था, ओके, वो उन्होंने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज़ फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड। और बाकी के पैसे उन्होंने किसी और काम में लगाए, जन कल्याण के कामों में लगाए, जो पहले से ही उनके दिमाग में चल रहे थे। About 15 kilometers to the east of Torna, in the hills of
Murubbadev, Shivaji had his eye on it for a long time. This hill was steep and of difficult of access and therefore the great strategic importance. 15 किलोमीटर दूरी पे, ओके 15 किलोमीटर तोड़ना की दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था मुरुब्बदेव। इस पहाड़ी पर शिवाजी की नज़र थी। क्यों नज़र थी? क्योंकि ये पहाड़ी बहुत ही स्टीप थी, मतलब एकदम ऐसे बोल सकते हैं, एकदम रास्ता उसका काफ़ी एकदम स्टीप था, चढ़ान उसकी बहुत डिफ़िकल्ट थी, आसानी से उस पर हम चढ़ नहीं सकते थे। स्टीप मतलब एकदम गहरी, स्टीप मतलब एकदम गहरी पहाड़ी थी वो, जिस पे चढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और इसी कारण से इस पहाड़ी पर भी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस था, एडवांटेज था इस पहाड़ी का। Adil Shah had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished. अब आदिल शाह ने इस पहाड़ पर, मुरुब्बदेव पहाड़ पर एक किले की निर्माण का कार्य हाथ में लिया था, बट किसी कारणवश बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही लेफ्ट इट इनकम्प्लीट, वो किला पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ था। दिस हिल also was not well guarded and Shivaji decided to capture hill. एक तो किला बनाने का काम आदिल शाह ने शुरू किया और आधे में रोक दिया, और इस जो किला बना था थोड़ा बहुत, उसके भी सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं रखे थे आदिल शाह ने। इट वॉज नॉट प्रॉपरली गार्डेड बाय आदिल शाह, सो शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर इट। यस, तो शिवाजी ने सोचा कि एक और किला, भले आधा क्यों ना हो, मैं उसे अपने कब्ज़े में ले लूँगा, ताकि स्वराज्य की जो माला है उसमें एक और किला जड़ जाएगा। ओके, सो आई होप you understood what I have explained you till here. I will like to stop here because I cannot upload if the video is too long. It is difficult for me to upload. So I will end this lesson here. In next part I will explain the remaining part of this lesson. So please like my videos, share and click at the bell icon and subscribe to my channel. Bye to all. Take care.